ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਕਿਆ ਪੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛਪੜੇ ਨਹਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ, ਨਾਰ ਨ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕੋ ਕੈਸੇ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਭੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਧਾਰੇ। ਅਣਗ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੈ,
आप न चीनस भ्रम भ्रम रुवै। कह तो पढ़ तो सुन तो एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक। जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पते आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम भउ भागै। सूरत मूरत आदि अनूप, नानक जाचै सच स्वरूप। सूरत मूरत आदि अनूप, नानक जाचै सच स्वरूप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत के मालिक हजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों चोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जन आप जी वड्डे भागा वाले हो, जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियाँ हाजरियां भर रहे हैं। नितनेम दियां बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन गुरु सवारे तो आप जी सरवण कर रहे सो। और रोजाना की तरह सतगुरु जी दे बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे को जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरे महला पहला, घर दूजा अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तनासरी राग विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पावन बचन अंग नंबर 685 686 के उत्ते सुभाईमान ने। ये पावन शब्द ताल कर दूजे दे विच गौणा किया है। 8 पदियां वाले शब्द ने और शब्द की प्रारंभता तो पहले उस परिपूर्ण परमात्मा का मंगलाचरण किया गया है कि वो जिहड़ा एक है, अद्वितीय है, जिहड़ा सर्व व्यापक परमेश्वर है। सतगुर प्रसाद वो गुरु की कृपा नाल मिलता है। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अज बड़ी रहमत की है कि सानू आम संसारिक उदाहरण दे के उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों के विच एक इस ढंग के नाल जोड़िया है कि थोड़ा जिहा ध्यान दे के जे सतगुरु जी के ना बचनों पढ़ लीए सुन लीए तो हो सकता कि जो गुरु साहब जी कृपा करके अज बख्शिश कर रहे हैं, ये बख्शिश साडे जीवन की हो जाए। सतगुरु जी ने रहावती पंक्तियों के विच पावन बचन कहे ने। 3 बचन 3 पदियों के विच गुरु साहब जी ने वरते ने। एक ते सागर
ਤੇ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਰਵਰ, ਸਰੋਵਰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਪੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਰ, ਸਰੋਵਰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਛੱਪੜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ, ਮੈਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘੀਏ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਗਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੱਪੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਪੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਪੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਔਰ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ, ਟੁੱਬੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਪੜੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਕਜ ਮੂੰਹ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਹਾਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਗਲਾ। ਕੀ ਨਹਾਏਗਾ ਛੱਪੜੀ 'ਚ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਤੇ ਬੱਪੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ये छपड़ियां ते नहाउंदा रह गया, उन्होंने पता ही नहीं लग्या कि रब नूं भी मिलना है। सतगुरु का पावन बचन है, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, ते कहते नहीं पई सी जी गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये मनुखा जीवन रब नूं मिलने वास्ते मिलिया सी, पर इनू समझ ही नहीं लगी। और सतगुरु जी ने सानू उदाहरणा दित्तियां, इवें दे लोग जिहड़े ने क्या पग बपड़ा छपड़ी लाए, वो विचारे छपड़ी विच नहाउंदे क्यों ने? ये देहधारियों के पिछे तुरे क्यों फिरते हैं? जां जिहड़े देहधारी बगले की तरह समाधि ला के बैठ गए, उन्होंने भी गुरु साहब जी तो पग पपड़ा ही कहते हैं, विचारा ही कहते हैं, क्योंकि विचारा चलिया तो रब नूं मिलन सी, पर हुण अपने चेले बना के बैठ गया। सतगुरु जी कहते हैं इवें दे जिहड़े ठग ने अखा बंद करके बेशक बैठ जाए। हुण पग पपड़ा नाले तो गुरु साहब ने तरस किया, विचारा गया, तो नाले कहते बगला देखो छपड़ी तो टुब्बियां भी लाउंदा है, और कई बार बैठता भी है एक लत्त ते बैठ जाता है, एक लत्त भी चुक लेंदा है। इन्ना टिक के बैठे होंदा अखा भी बंद है, वेखण वाले नूं लगदा अखा बंद ने, पर वो तो समाधि इस करके ला के बैठा, टिक के बैठा, बिल्कुल हिलदा नहीं। कोई डड्डी आए, कोई मच्छी आए, उन्होंने फड़दा है, उनकी समाधि सिर्फ इत्थों तक है। और जेडे साडे लोग भुले हुए अखा बंद कर करके घंटे घंटे बैठते हैं, और सतगुरु जी ने कृपा की जी उदाहरण दी समझाने लिए तो सानू दी है। साडे ते तरस करते हैं, विचारे बगले की तरह तो समाधि ला के बैठते हैं, तो बगले की तरह क्यों किया? सारे ठग नहीं, पर बगले की तरह क्यों किया? अपने वड़ों अपने आप को गुरसिख अखवाउण वाले भी बैठते हैं, पर उन्होंने ध्यान डड्डी मच्छी जी है। डड्डी मच्छी केड़ी है कि नौकरी मिल जाए, धी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये छोटिया छोटिया चीज़ां। और सतगुरु जी कृपा करते हैं, ये मेरे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी वो सागर ने, इत्थे बगला बिरती लैके भी आएगा तो मिलता भी जाएगा, इत्थे हंस नूं भी मिलेगा, पर जिहड़ा बगला है फिर वो विचारे रह जाएगा, वो इन्हां चीज़ों के विच फस के रह जाएगा। गुरु साहब जी ने कृपा की, इवें दे बगले हंसां दे विच, गुरसिखां दे विच जिन्ना मर्जी रल मिल के बैठन, बगले सैकड़े होण, एक विच हंस होवे, रंग उवें दा ही है, पर वो ना हंस बगले च रलेगा, ना बगले हंस च रलेंगे। सतगुरु का पावन वचन है, हंसा विच बैठा बग ना बने। बग्गा जिहड़ा बगला है हंसा विच जाके बैठ जाए तो हंस थोड़ी बन जाएगा। क्यों जी? गुरु साहब जी ने कृपा की, कहते नित बैठा मच्छी नूं तार ना मैं। बगले की बिरती सिर्फ इतों तक है कि ये कुछ मिल जाए, पर सतगुरु जी कहते हैं हंस की बिरती की है, जा हंस सभा विचार कर देखण, तब बग्गा नाल जोड़ कदे ना आवे। तो जोड़ क्यों नहीं होता? क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं हंस हीरा मोती चुगना, हंसा का खाना पीना सुच्चे मोती मन्निया गया है। हंसा हीरे मोती चुगना, पग डंडा भालन जाना। हुण हीरे मोती किहड़े चुगने ने? गुरु साहब जी ने कृपा की, पहलों वो वचन कि इत्थे भावें विचारा को बगला भी आ जाए, छोटी छोटी मंगा लैके भी आ जाए, मेरे गुरु ने तो उस बगले नूं भी देना है। इत्थे कोई हंस बिरती वाला आ जाए, देना उन्होंने भी है, पर बगले की मंग अपनी छोटी जी सीमित, हंस की मंग बड़ी वड्डी है, तो कोई मंग होर मंगी कोई नहीं। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तो पावन वचन आप पढ़ते हैं सुखमनी साहिब के, कि इत्थे हंस आ जाए, बगला आ जाए, मिलेगा सब। पर हंस की खुराक आप जी जानते हो कि सुच्चे मोती ने, तो इत्थे सुच्चे मोती जां हीरा किनू क्या? गुणा। हुण सतगुरु का पावन वचन आप पढ़ते हैं कि इस घर में आके जो भी मंगे, चार पदार्थ जेको मंग है,
चार पदार्थ किसी को मिलते नहीं, पर धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं इस दर ते आके वो भी मंग ले तो मेरे गुरु ने कृपा करनी, वो चार पदार्थ भी मिल जाने। बस करना कि साजना की सेवा लग गए। इतों आके विचारा बगला जिन्हों समझ ही नहीं कि केवल अपने दुख को दूर करने आ गया। तो सतगुरु कहते हैं जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, दुख भी दूर हो जाएंगे। हुण जे को केवल आके बगले की तरह ये कहे कि मेरी वडियाई भी होगी, मेरे कपड़े भी चिट्टे दिसन, तो लोग झुक के थोड़ा जिहा सलाम भी करना, सत्कार भी करना। तो सतगुरु जी ने कृपा की, ये भी मिल जाएगा। जे को अपनी शोभा डोरा है, साध संगे हुमा शोरा, गुरु की संगत में जाके बस अंदर के हुमे नूं छड्ड दे, सारे सत्कार करेंगे। और गुरु साहब जी कहते हैं जे को जन्म मरण ते डर है, किसी को ये डर के जन्म मरण का चक्कर बड़ा वड्डा है, तो सतगुरु जी तुहाडे दर ते आया कि मेरा जन्म मरण कट्टिया जाए, हर कोई चाहता है। तो गुरु साहब जी कहते जन्म मरण भी कट्टिया जाएगा, बस उनके वास्ते भी की करना, साध सनाम की शरणी पर है। संगत दे गुरु के शरण में आ जा, जन्म मरण भी कट्टिया जाएगा। पर अखेरली मंग जिहड़ी है वो सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं हंस की है। उस गुरसिख के जिंदे कोल हंस वर्गी बिरती आ गई। हुण हंस नूं पता है कि दुध दे विच पानी भी है, पर पानी दे विच तो रहिंदा ही है, तो जे खाना है तो फिर पानी नूं विच क्यों लेना है। चुंझ मार के उन्हें पानी अड्ड करना है। और ये कहा जाता है कि चुंझ जदों मारे हंस, दुध का जिहड़ा पनीर फुट जाता है, पनीर बन जाता है, दुध फुट जाता है, उन्हें पनीर पनीर चुक के खा लेना, बाकी पानी तो पानी विच रलिया हुआ थोड़ा बहुत दुध विच रह जाना है। हुण सतगुरु जी कहते हैं हंस बिरते वाले गुरसिख आउंदे वो भी नहीं मिलेगा, उन्होंने मिलेगा बगले बिरती वाले। पर हंस की मंग की है, सतगुरु जी कहते हैं हंस ने आके मंगना, सतगुरु जी कोई गल नहीं, दुख जिन्ने मर्जी आ जाए तुहाडे हुक्म विच ही आउणे ने, सुख जिन्ने मर्जी मिल जाण तुहाडे हुक्म विच मिलने ने। कोई मान इज्जत दवे, कोई अपमानित कर दवे, तुहाडे हुक्म विच है। बस मेरी शोभा किते होवे कि ना होवे, सतगुरु जी केवल तो केवल तुहाडे दर ते मंगण इक्को ही चीज़ आया है कि जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, केवल तुहाडे दर्शनों की चाहत। हुण हंस ने तो ही मंगना है, मोती मंगने ने। और धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते हैं ऐसे हंस गुरसिख दे चरणों ते मेरी नमस्कार है, उन्होंने तो बलहार जाइए कि जिन्हें केवल अंदर दर्शनों की चाह लैके आया है कि कुछ नहीं चाहिए, केवल तुसी चाहिए। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल पल जैसा। पर सतगुरु जी कहते हैं विचारे बगले नूं पता ही नहीं कि मंगना की है, विचारे बगले नूं पता ही नहीं कि छपड़ी में नहा के सगों मैल लगनी है। तरस भी करते हैं क्या पग बपड़ा छपड़ी नहाए, कहते नहा के होवेगा कि चिक्कड़ डूबे मैल ना जाए। चिक्कड़ दे विच सगों डूबेगा, मैल थोड़ी जानी है, मोह के चिक्कड़ विच डूबेगा। ये रहाऊ दी पंक्ति ने हुण गुरु साहिब जी ने पावन बचन पई लिखे, गुर सागर रतने पर पूरे। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं मेरे गुरु सागर ने। धन गुरु नानक साहिब के गुरु कौन ने जी? शब्द गुरु, सुरत तो चेला, शब्द की है ज्ञान, सब शब्द की है समझ गुण। कहते मेरे गुरु जड़े ने सागर ने, और रतनी भरपूरे, भरपूरे का अर्थ होंदा है नक्को नक भरिया हुआ। वो सागर है जिंदे विच कीमती रतन ने और नक्को नक भरे हुए। हुण सागर समुंदर उनदे विच रतन होण, नक्को नक भरे होण, तो जिन्ने मर्जी चुक लिए पर हंस तो बनना पेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने
ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਢਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਟੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਉ ਜਾਊ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖੈ ਸਗਲ ਨਿੱਧ, ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਸੋਈ ਨੇ ਪਜਾਵਹੀ। ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਖੇ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨੇ ਪਜਾਵਹੀ। ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਤਨ ਭਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰਤਨ ਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੀਏ ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਗਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੇ ਭਰਪੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਗਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿ ਟੋਟ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
वो अमृत चुगते हैं। अमृत संत चुगे नहीं चुगे। अमृत की है जी? गुड़। उन्हों का खाना मोती है, रतन कीमती है। उन्हों का खाना हीरे ते मोती है, वो गुण चुगते हैं। और ऐसे हंस जिहड़े ने अपने गुरु सागर नूं छड्ड के कदे दूर नहीं जाते। हर रस जोग चुगै प्रभ भावै, वो हरि ते रस विच भिज गए, प्यार विच आके चोगा चुगते हैं। हंस चोगा चुगते हैं ना जी, पर चोगा कहदा चुगते हैं? प्रभ भावै। जो कुछ प्रभु नूं भाउंदा है बस उसे नूं सत करके वो चुग लेंदे ने, स्वीकार कर लेंदे। जो प्रभु नूं भाउंदा है उनकी रजा दे विच चलदे ने, यही उन्हां दी खुराक है। सरवर मैं हंस प्राण पत पावै, क्योंकि ऐसे गुरसिख हंस नूं उस सरोवर दे विचों प्राणा दा पति मिल गया। हुण हंस दा प्राणपति की मान सरोवर है, तो गुरु के सिख लई प्राणपति गुरु सागर है। प्राणा दा पति मिल गया। और रहाऊ दी पंक्तियां पसंजे कीतियां ने, क्या पग बपड़ा छपड़े नहाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए। रहाऊ हुण अगे हंस दी बिरती दसदे ने, कहंदे रख रख चरण धरे विचारे। जिहड़ा हंस बन जाता है, गुरसिख है हंस वर्गा। रख रख चरण, अपने जिहड़े चरण ने पैर ने रख रख तो भाव के बड़े संभाल के रखता है। जीवन की यात्रा करते हुए हर एक कदम जिहड़ा विचार करके रखता है, ये कदम पटना चाहिए कि नहीं। और कदम का अर्थ केवल शरीर के पैरों नाल चलना नहीं। आपां कहने कि एक कदम अगे चल, वो जिहड़ा कदम असल में किहड़ा फैसला लैके चलना है जीवन दे विच, वो कदम है। और गुरु के सिख वो विचार करके चलते हैं। तो विचार वो जो गुरु नूं भाए, तो विचार की करते हैं? दुबदा छोड़ भय निरंकारी, अंदर की दुबदा बिल्कुल छड्ड दिंदे ने कि जिहड़ा पैर है हुण किसी देहधारी वाले पासे ते तरना ही नहीं, किसी होर दा असर ते तकना ही नहीं। भय निरंकारी, वो केवल निरंकार वाले हो जाते हैं। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, तो वो जीवन दे विच अपना एक एक कदम जिहड़ा है वो विचार करके पटदे ने। तो इन्हां तो फल की मिलता है? मुक्त पदार्थ। इन्हां विकारां वालों मुक्ति मिलती है, क्योंकि जिन्हें अपना कदम विचार के सोच के समझ के पटना, विकार उनके नेड़े आ ही नहीं सकता। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवण जाण रहे गुर राखे। ते ऐसे हंस गुरसिख का गुरु साहब जी ने आना जाना मिटा दिता। सरवर हंसा छोड़ न जाए, ते जिहड़ा गुरसिख हंस है फिर अपने गुरु सरोवर नूं छड्ड के किते नहीं जांदा। प्रेम भगत कर सहज समाए, इस सरोवर दे विचों लीन हो जाता। प्रेमा भगती करके आत्मिक अडोलता दे विच टिक के इस सरोवर दे विच गुरु सरोवर विचों लीन हो जाता है। सरवर मैं हंस, हंस मैं सागर, हंस गुरसिख जपण वाला। कहते सरवर मैं हंस, सरवर कौन है? गुरु। गुरु दे विच सिख, ते सिख दे विच गुरु समा जाता है। कल्ला सिख ही नहीं समांदा, गुरु साहब जी ने पावन बचन कहे ने, गुरु सिख, सिख गुरु है, बस एको ही रूप हो जाते हैं, एको उपदेश चलाए। सरवर मैं हंस, सिख जिहड़ा गुरु दे विच समा जाता है। हंस मैं सागर, ते जिहड़ा सागर रूपी गुरु है वो अपने सिख विच समा जाता है। अकथ कथा गुर बचनी आदर, फिर गुरु दे विच समाया होया वो हंस गुरसिख उस अकथ की कथा करते जिहड़े है तो कथन तो बाहर है, कथी नहीं जा सकती, पर कथा किवें करता है? गुर बचनी आदर, गुरु के बचना का आदर करता है, सत्कार करता है। हुण सत्कार करना केवल
रुमाले सोहने सोहने ला लेने तो सत्कार नहीं है, बेशक सत्कार है, पर धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं असल सत्कार गुरु के बचनों मनना ते सत्कार देना। वो गुरु के बचनों का आदर करता है। सुन मंडल एक जोगी पैसे ते किवें आदर करता है। सुन मंडल, उस सुन अवस्था दे विच सुन दा अर्थ है कि जिथे किसी भी तरह का माया का कोई फुरना ना जाए, किसी भी तरह का फुरना कोई अंदर उठे ना। कहते सुन मंडल एक जोगी पैसे, उस जोगी की तरह वो बैठते हैं जिथे कोई फुरना ही नहीं। नार ना पुरख कहूँ को कैसे, उनके अंदर फुरना उठता ही नहीं कि ये नार है या पुरख है, क्योंकि उन्होंने हर किसी के विच केवल एक रब दिस रहा है। फिर एक किवें क्या जा सकता है कि ये नारी है या पुरुष है, तो जे ये फर्क नज़र आवे इनका मतलब सुन अवस्था साढ़े नेड़े ते नहीं। खैर सतगुरु जी कृपा करना। कहते त्रिभवन जोत रहे लिव लाई, उस परमेश्वर जी तिना भवनों के विच जिंदी जोत है, उस हंस गुरसिख की लिव उनके विच सदा की लग जाती है। सुर नर नाथ सच्चे शरणाए, के सुर के नर ते की नाथ, सुर देवते नर मनुख ते नाथ वो जेडे वड्डे वड्डे योगी ने, वो सारे उस सच्चे परमेश्वर की शरण विच ने। आनंद मूल अनाथ आधारे, क्योंकि वो परमेश्वर ही आनंद का मूल है, वो अनाथों का नाथ है। गुरसिख भगत सहज बेचारे, ते जेड़े गुरमुख ने, गुरमुख भगत सहज विचारी, वो भगते करके सहज दे विच टिक के, सहज की है आत्मक अटोलता ज्ञान, वो सहज के विचार करते हैं, ज्ञान के विचार करते हैं। तो विचार की है भगत वशल भै काटण हारे, कि वो जेड़ा मेरा गुरु है, जेड़ा परमेश्वर है, वो भगत वशल है। भगत के तत्ते नूं सियारी भगती, भगती का अर्थ भगती करने वाले, वो भगत वशल भगती नूं प्यार करने वाला है। भै काटण हारे, ते अपने भगतों के सारे भै डर कट्टण वाला है। हम मैं मार मिले पग धारे, तो वो गुरमुख फिर भगती दे विच टिक के, भगती सहज विच टिक के ये विचार करते हैं कि होमे नूं मार के ही उस परिपूर्ण परमात्मा का आसरा जीवन का आधार बना के उन्हें मिलिया जा सकता है। होमे मार मिले पग धारे, अणग जतन कर काल संताए। हुण सतगुरु जी उस पग पपड़े की गल करते हैं, जेडे विचारे ने जतन तो भी बड़े करते हैं कि इवें दी अवस्था किते सानू भी मिल जाए, साडे अंदर भी किते शांति आ जाए, बड़े जतन करते हैं। पर कहते समय ने हर वेले उन्होंने सता के रखिया। मरण लखाए मंडल मह आए, इत्थे मरना केवल शरीर का मरना नहीं, आत्मिक मौत भी है। कहते क्योंकि विचारे जो उन्होंने समझ ही नहीं, असल में वो आत्मिक मौत जी है तुर तो लिखा के आए है। मरण लिखाए मंडल में आए, जतन वो भी बड़े करते हैं, पर पता नहीं ना, जतन करते हैं वर्त रख ले, जतन करते तीर्थों पर जाए, जतन किते कि पाठ करवा लीए। उर्खिमा करना गुरु साहब की बाणी जदों पढ़ी है ना, किते भी नहीं लिखा कि पाठ करवाओ। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ना होंगे, चलो उन्होंने बहाना तो है कि सानू पढ़ना नहीं होंगे, है तो बहाना ही, क्योंकि जो 90-90 साल उम्र होगी तो पढ़ना ना हो, ऐसी गल तो नहीं। साडी माँ बोली है, जे कितने 10 मिनट भी रोज़ लाए होंगे तो एक सहज पाठ तो हो ही जाना सी। उन्होंने कोल चलो बहाना है कि सानू पढ़ना नहीं होता, पर जेडे जानते भी ने पढ़ते भी ने, तो जो वो भी केवल कराने वाले पासे हो कि तुम करो असीं भेटा देंगे। गुरु ग्रंथ साहब के ऐसा तो कहते न्याय की कराओ, ये जरूर आया कि भाई गावो सुनो पढ़ो नित पाई, पढ़ो, नहीं पढ़ सकते सुनो। खैर सतगुरु जी कृपा करते हैं। जन्म पदार्थ दुबदा खूवै,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨ ਚੇਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਏਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਏਕ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਤਰ ਟੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਨੀ ਤਰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਤ ਸਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਦਵੀ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਉ ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦਿ ਅਨੂਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਦਿ ਅਨੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੰਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿੰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸਰੂਪ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।